اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجیے، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، آپ 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے، پابندی کے ساتھ چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج 16 اگست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کل 15 اگست کو میرے ہاتھوں سے الحمدللہ احمد آباد کے نارول بیرل مارکیٹ لڑکے اور لڑکیوں کا بڑا مدرسہ ہے، بڑی اسکول ہے، وہاں پر میرے ہاتھ سے ترنگا پھہرایا گیا، پرچم کشائی ہوئی اور ایک شاندار ترنگا ریلی بھی نکالی گئی۔ مفتی اکرم صاحب قاسمی کے 2 ادارے ہیں، جامعہ ام حبیبہ اور بیٹوں کا جامعہ اہل عربیہ اہل صفہ، ان دونوں اداروں کا بڑا شاندار پروگرام وہاں پر ہوا۔ تو کل میں وہاں پر تھا، رات میں پھر گودرا میں پہنچا، صبح کا پروگرام احمد آباد میں کیا، پھر مغرب کے وقت میں گودرا پہنچا، عشاء کے بعد میں گودرا شہر میں رحمانیہ مسجد میں بہت شاندار پروگرام ہوا۔ ملک کی آزادی میں علماء کی، مسلمانوں کی قربانیاں، یوگدان، بلیدان، اس پر تفصیلی 1.5 گھنٹے کی میری بات ہوئی، اور پھر رات کو 2 بجے میں وہاں سے بروڈا پہنچا، انتخاب بھائی رنگریز کے ساتھ میں بروڈا پہنچا، اور وہاں سے پھر میں 2:15 بجے بروڈا سے میں ہاوڑا ایکسپریس میں بیٹھا اور 11 بجے جلگاؤں اسٹیشن پر اترا اور سیدھا ادھر چلے آیا۔ ابھی یہ ڈریس بھی ایسی کہ ایسے ہے، کل کا جو ترنگا تھا وہ بھی ایسی کہ ایسے میرے اس دل کے قریب ابھی بھی لگا ہوا ہے۔ بس لگاتار سفر تھے، اس لیے آج ہماری نیشنل نیوز بھی آپ تک کے لیٹ پہنچ رہی ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری محنتوں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہماری مدد فرمائے۔ چلیے آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کل 15 اگست یوم آزادی کا موقع جشن زبردست انداز میں منایا گیا، اور ویسے تو اس سال ایسے لگ رہا تھا، سب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اتنا شور ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آزادی اسی سال ملی ہو، یا اب کیا بولیں، لیکن خیر چلیے آئیے۔ گزشتہ کل دلی کے لال قلعے سے بھی زبردست انداز میں ترنگے کو پہلی بار دیسی توپوں سے ترنگے کو سلامی دی گئی، اور یوم آزادی کے موقع پر ہمارے پیارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم مودی جی بھی بالکل الگ رنگ میں نظر آئے اور ان کا زبردست انداز میں بھاشن بھی ہوا۔ وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہر گھر ترنگا اسکیم جو ہے
कर्नाटक के वजीर आला ने यह कहा कि वो कामयाब साबित हुई है। मोदी जी ने लाल किले से भाषण करते हुए कौम से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन को एहतराम और मौका देने से अमृतकाल को नए पंख लगेंगे। और वहीं पर मोदी जी ने राजघाट पर बापू को खिराज अकीदत भी पेश किया। जहां भगत सिंह मोदी जी को याद आए, वहीं पर अशफाकुल्ला खान भी याद आए। और बड़ी खबर आ रही है कि मोहन भागवत ने भी आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा लहराया। वैसे मैं आपको बता दूं कि यौम आजादी के इस मौके पर जो यूं समझिए कि पीएफआई फिरका परस्तों की आंखों में खटकती है, उनकी भी तिरंगा रैली जबरदस्त अंदाज में शानदार नजर आई। पूरे मुल्क में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बड़ी जोशो खरोश से मनाया गया और इस्लामी मुल्कों की जानिब से भी हिंदुस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबादियाँ पेश की गई। आइए आज इस वक्त बड़ी खबर शिमोगा से कर्नाटक से आ रही है कि सावरकर की तस्वीर पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ, फिरका वाराना कशीदगी फैल गई, 2 लोगों पर जानलेवा हमला भी हुआ, पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात नजर आए। स्टेट रिजर्व पुलिस समेत RAF की टुकड़ियाँ तैनात की गई। वहीं पर भद्रावती में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। और कर्नाटक की दूसरी खबर आ रही है बेंगलुरु से। आप जानते हैं कि ईदगाह मैदान बेंगलुरु का महकमा रेवेन्यू ने पहली बार वहां पर जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया। आप जानते हैं कि महकमा रेवेन्यू ने अपना हक उस पर जता दिया है और वक्फ बोर्ड ने भी अब इस पर केस दाखिल कर दिया है। लेकिन खैर कर्नाटक के ईदगाह मैदान में पहली बार परचम कुशाई हुई और 1000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार वहां तैनात थे। कर्नाटक के बेंगलुरु में ईदगाह मैदान को लेकर वक्फ बोर्ड और इंतजामिया के दौरान विवाद तनाज़ा जारी है। आइए बड़ी खबर आ रही है मुकेश अंबानी। जी हाँ, खबरें आ रही है कि एक मुस्लिम नाम से उनको जान से मारने की धमकी मिली है। दहीसर पुलिस ने 56 साला विष्णु भूमक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अफजल के नाम से फोन किया था। यानी हुआ ना हरामीपन, हुई ना बदमाशी कि किसी भी हाल में टारगेट मुसलमान रहे। खैर गिरफ्तार किया गया विष्णु, जिसने अफजल के नाम से फोन किया था, यानी मुस्लिम नाम से मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी थी। खैर इस वक्त ये खबर चारों तरफ छाई हुई है कि आखिर मुकेश अंबानी मुल्क के लिए, बल्कि एक यूँ समझिए कि लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों के लिए और बड़ी सत्ताधारी पार्टी के लिए यूँ समझिए कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। तो जाहिर बात है कि खलबली तो मची हुई है कि मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन इतना तो अच्छा हुआ कि धमकी देने वाला पकड़ा गया, जो मुसलमान नहीं बल्कि विष्णु निकला। आइए बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल लाल किले की फसील से, शायद मुगलों ने ही मेरा ख्याल दिया होगा, होगा नहीं है, तो लाल किले की फसील से हमारे लाडले वज़ीर आज़म ने तिरंगा लहरा कर और सलामी देकर लंबा चौड़ा भाषण किया। उनके भाषण को लेकर भी अब कई विवाद टिप्पणियां और कमेंट्स शुरू हो गए हैं। अभी मोहतरमा सोनिया गांधी ने कहा कि तारीखी हक़ाइक़ और हिस्ट्री को गलत अंदाज में बयान किया जा रहा है। मोदी हुकूमत इन कोशिशों को, जो आज़ादी के असल सूरमाओं ने इस मुल्क पर अपनी जान कुर्बान करके आज़ादी दिलाई, उनकी कोशिशों को गलत अंदाज में पेश करके तारीखी कामयाबी को मामूली बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 75 सालों में, सोनिया जी ने कहा कि गुज़िश्ता 75 सालों में अपने बासलाहियत अफराद की मेहनत से साइंस, तालीम, सेहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत तमाम शोबों में हमारे मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की मिली है और हमारे लोगों ने इन तमाम मैदानों में अनमिट नुक़ूश छोड़े हैं, काफ़ी काम किया है। लेकिन सोनिया गांधी का साफ तौर से इशारा है कि मोदी जी भाषणबाजी ऐसे कर रहे हैं कि मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा लगे कि जैसे ये आए
तभी सब कुछ हुआ है, वरना इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था और किसी ने कुछ किया ही नहीं था। और लोग अब ये भी कह रहे हैं कि तिरंगा, झंडे और देशभक्ति बताने का इतना ढंढोरा पीटा कि शायद नई नस्ल को ऐसा लगने लगा था कल कि अभी इसी साल 15 अगस्त पर मुल्क को आज़ादी मिली। आइए मगरबी बंगाल की एक बड़ी खबर आ रही है। वहां की लाडली सीएम वजीर आला ममता दीदी ने गुज़िश्ता कल बाकायदा अपने कारकुनों से पुरअसरार अंदाज में पूछा कि अगर वो मेरे घर आते हैं, कौन, ईडी, सीबीआई, आजकल अपोजिशन के घरों को फटाफट पहुंच रही है। लोगों का कहना है कि इन 7 सालों में कभी ईडी या सीबीआई को बीजेपी का किसी भी मंत्री का ऑफिस या घर नजर नहीं आया। तो अब खबरें आ रही कि ममता दीदी ने अपने कारकुनों से बात करते हुए एकदम पुरअसरार अंदाज में पूछा कि अगर वो मेरे घर आते हैं ईडी वाले, तो क्या आप एहतजाज आंदोलन करेंगे? मरकजी एजेंसियों के जरिए गिरफ्तारियों का यूं समझिए कि डर के पेश नजर ममता ने पार्टी कारकुनों से सवाल किया और एक ऐसे वक्त में उन्होंने ये बात कही जब उनके 2 करीबी साथियों को ईडी ने अपने कब्जे में लिया है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो इनका क्या मतलब, वो से उनका क्या मतलब है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी को भी कहीं ना कहीं अब ये डर सता रहा है कि ईडी बहुत जल्द उनके घर चाय पीने आ सकती है। आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जश्न आज़ादी मनाया गया, लेकिन कई लोगों ने यूँ समझिए कि वो कैसे आज़ादी का जश्न मनाएं, उनके सामने एक बड़ा सवाल है। सिद्दीक कप्पन जो एक बेटी की कहानी कैद करने के लिए गया था और सच्चाई को बयान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूपी हुकूमत ने उसे अपने जुल्म का निशाना बनाया और आज वो जेल की सलाखों में। तो अब खबरें आ रही है कि यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त के मौके पर जेल में बंद जर्नलिस्ट सिद्दीक की छोटी सी बेटी महनाज ने जज्बाती अंदाज में खिताब करते हुए कहा कि अवाम की आज़ादी को सलब नहीं किया जाना चाहिए, छीना नहीं जाना चाहिए। और इस वक्त मुल्क में आज़ादी का ढंढोरा पीटने वाली सरकार पत्रकारों की आज़ादी को भी और हर शख्स की आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रही है, यानी हिटलराना और तानाशाही अंदाज इख्तियार कर रही है। गुज़िश्ता कल सिद्दीक कप्पन की छोटी सी बेटी महनाज ने 15 अगस्त के मौके पर ज़बरदस्त अंदाज में जज्बाती खिताब किया, लोगों के आंखों में आंसू आ गए। उस वक़्त उसने एक जुमला कहा कि इस वक़्त जनता की, गोया के इशारा कर दिया कि जनता की आज़ादी को छीना जा रहा है। और मेरा बाप तो गोया कि एक पत्रकार था, मगर पत्रकारों की आज़ादी भी अब इस मुल्क में छीन ली गई। आइए बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने। जी आप जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद, जिन जाहिलों को इसकी हिस्ट्री नहीं मालूम है वो शैतानी हरकतें या शैतानी बयानात दारुल उलूम के ख़िलाफ़ देते रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता कल दारुल उलूम देवबंद में ज़बरदस्त अंदाज में एक शानदार जश्न आज़ादी की तकरीब अमल में आई, प्रोग्राम हुआ जिसमें मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मौलाना ने जज्बाती अंदाज में कहा है कि मेरा बाप 9 साल जेल में रहा, मेरा चचाजाद भाई माल्टा के जेल में गया, हमने आज़ादी की कुर्बानियां अपने बाप दादा अपने पुरखों को देते हुए अपनी आंखों से देखा है। और चिढ़कर गोया के मौलाना अरशद मदनी ने बड़े गुस्से के अंदाज में बरहम होते हुए कहा कि ये क्या जाने कि आज़ादी क्या होती है और कैसे आज़ादी मिली है। तो खैर दारुल उलूम देवबंद के बारे में मैं आपको बता दूं कि मौलाना अरशद मदनी ने गुज़िश्ता कल ये कहा कि दारुल उलूम की बुनियादों में ये बात शामिल थी कि 1857 के शिकस्त के बाद बाकायदा मुजाहिदीन की फौज तैयार करने के लिए जो इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराए, इस मकसद के तहत दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई थी। यानी दारुल उलूम देवबंद का मुल्क पर बड़ा एहसान है कि आज़ादी के सिपाही वहाँ तैयार हुए थे। आइए रियासत गुजरात के अहमदाबाद से मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बड़ी खबर इस वक्त हमें भेजी है। जी हाँ, मैं आपको और गुज़िश्ता कल मैं खुद भी अहमदाबाद में था। मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि जो सरखेज का इलाका है, जोहापुरा का इलाका है, यहाँ के मदरसे और वहाँ के स्कूल और तमाम इलाके के मुस्लिम समाज ने
गुजरात की सबसे बड़ी तिरंगा रैली निकाली है। गुजरात का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा और तिरंगा रैली वहीं पर निकाली गई और हजारों की तादाद में बहुत शानदार अंदाज में तिरंगा रैली निकाली गई और अहमदाबाद में मदारिस के उलमा, मदारिस के जिम्मेदारान और तमाम ही सियासी समाजी मिल्ली शख्सियात ने इस रैली में शिरकत की और एक बहुत ही उत्सव का और खुशी का जश्न का माहौल गुज़िश्ता कल अहमदाबाद में नजर आया। नाज़रीन, इस वक्त आखिरी बड़ी खबर फिल्म मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल पूरे मुल्क के जितने मदारिस हैं, जी हाँ, बहुत बड़े बड़े पैमानों पर मदारिस में जो है जश्न आज़ादी मनाया गया। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं कि ये कोई डर है, ये कोई खौफ है, या अपनी देशभक्ति ज़्यादा दिखाना है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम कितनी ही देशभक्ति दिखाओ, लेकिन यहाँ जो मुल्क में चंद शैतान हैं वो हर हाल में आपके खिलाफ ही रहेंगे और आपकी देशभक्ति पर सवालिया निशान खड़े करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मदारिस ने कोई देशभक्ति दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं आपको बता दूं कि हमको देशभक्ति, मुसलमानों को देशभक्ति रत्ती बराबर भी दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुनिया जानती है, भले ही तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, हिस्ट्री को गलत अंदाज में पेश किया जाए, ये दुनिया जानती है कि मदारिस का बड़ा एहसान है इस मुल्क पर कि मदारिस ही से बाकायदा आज़ादी के वीर, आज़ादी के मुजाहिदीन और आज़ादी के सपूत पैदा हुए थे। और ये भी दुनिया जानती है कि इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सारे के सारे नारे अगर किसी ने लगाया है तो ये मुसलमानों ने लगाया है और इन्हीं नारों से एक जोश पैदा हुआ। और दुनिया ये भी जानती है, भले ही इसको दिखाया ना जाए लेकिन जानने वाले जरूर जानते हैं। वो किसी शायर ने कहा है ना कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो खैर, आज़ादी की जो कुर्बानियाँ हैं वो मुसलमानों ने सफ़े अव्वल में रहकर और पहले मैदान में उतरकर कुर्बानियाँ दी है और मदारिस वाले हर साल इसी तरीके से जश्न मनाते हैं। ये कोई अभी अपने आप को देशभक्त साबित करने का अंदाज नहीं था, बल्कि मुल्क भर के तमाम मदारिस ने, छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर दारुल उलूम देवबंद के बड़े तलबा ने और उलमाए किराम ने गुज़िश्ता कल जश्न आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है।
इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।